let's start with our new topic in continued chapter, that is of the heredity, Mendel's law, etc. In this we have up to here we have studied that Mendel's law and the observation of the Morgan. So look here, what Mendel and Morgan has observed. Mendel and Morgan. So look, both Mendel and Morgan are common in their observation, but at the time they were the different. They were the difference in their other conclusion. What according to Mendel and Morgan, what happened? For every character, there are one pair of genes. As for example, the plant become tall or it become dwarf. Pair of genes, T, homozygous dominant or heterozygous or small t, homozygous recessive. Okay. Second, for the color of seed, yellow dominant and green recessive. Capital Y, small y. Homozygous dominant, homozygous recessive. Here, heterozygous also produce dominant character. Means one pair for one character. One pair for one character. Now, how Mendel observation conclusions are differ than that of the Morgans. So look here, we can say that one pair of gene allele is responsible for one character. Okay? According to Mendel's conclusion, Mendel's result, these, when we consider more than one character, for this, what for two pair of genes, means every pair is on their own different chromosome. Means when Mendel considered two characters means two pair of genes. It was one pair gene, one character. So one pair gene, one character. Second pair of genes, second pair. In this, both genes are present on different pair of chromosomes. Why? Considering Morgan's result, both pair are present on same chromosome. Understood? Look, presence of alleles with genes are on the same chromosome for both the character, and please do not confuse that every pair has only two pair of the genes. No, further we will study that every pair means on our first chromosome in human being, first pair is 2968 genes. Still we have identified this much. May possible more than these genes may be there. So look, here according to Morgan ने जो स्टडी किया था उसमें क्या है, वो जो दो पेयर्स का स्टडी किया था उन्होंने, वो दोनों एक ही क्रोमोसोम पे थे। मेंडल ने जो किया था वो अलग अलग क्रोमोसोम पे, ये तो दोनों ने दो कैरेक्टर और दो पेयर जीन्स का ही किया। समझ आ जाएगा? लुक हियर, यहाँ तक हमने स्टडी। उसके बाद में क्या स्टडी था? मल्टीपल जीन्स। व्हाट इज दैट मल्टीपल जीन्स? यही तो समझना है। मल्टीपल जीन्स मीन्स देखो उसमें हमने कोडोमिनेंस तो दूसरा भी स्टडी किया, ये भी हम देखते हैं। मल्टीपल जीन्स
बोलो क्या हुआ? फॉर आवर वी कैन से, चलो यही आप ले लेते हैं, मोर देन वन पेयर, इसके साथ ही मैं इसको कंपेयर करता हूं तो अभी क्या आएगा, मोर देन वन पेयर ऑफ जीन्स, more than one pair of genes is responsible for one character. समझ में आया? क्या हमने स्टडी करा था? ब्लड ग्रुप, कोडोमिनेंस, दोनों एक साथ में खुद का एक्सप्रेशन करते हैं, बट मोर देन वन पेयर ऑफ जीन्स, बोलो फॉर द ब्लड ग्रुप ए either homozygous A or the heterozygous A, for the blood group B homozygous B or the heterozygous B, for the blood group AB heterozygous AB, for the blood group O homozygous small I, means बोलो कितनी पेयर है? 6 पेयर। कितने कैरेक्टर के लिए? 1, means more than one pair of genes for one character, but in any individual human being presence is of only one pair. कितनी पॉसिबिलिटीज है? 6। अब बोलो मेरा जो भी ब्लड ग्रुप होगा तो क्या होगा? सपोज मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो ये 6 में से भी आई विल हैव ओनली आई ए और आई ए स्मॉल आई। मैं पॉसिबल कि मेरे पास आई ए है तो भी ए, मिस प्रेजेंट तो मेरे में एक है। बोलो ये होगा तो भी, ये होगा तो बाकी के 5 नहीं है। बोलो मेरा ब्लड ग्रुप भी है, सपोज ये है तो बोलो 6 में से कितना प्रेजेंस है? ओनली 1। मींस पॉसिबिलिटी कितनी है कि मोर देन वन पेयर, बट प्रेजेंस कितनी है? 1। means more than one pair of genes are there, possible है, but कोई एक कैरेक्टर के लिए कोई एक में प्रेजेंस कितनी है? ओनली 1 पेयर। बोलो समझ में आ जाएगा? यही तो समझने का है जीन्स में और इसमें। स्टूडेंट जब आते बोल सर इसमें वो थियरी के टाइम पे कुछ भी कर लेते हैं, जैसा ऐसा रट्टा लगा लेते, नीट में आता है तो पानी में बैठ जाते हैं, सर इसका आंसर ये सब कैसे आया? मैं बोला सिंपल, तुमने याद रखा होता तो भी समझ में आ जाता। अब देखो हमको यहाँ क्या स्टडी करना है? पॉलीजेनिक, मल्टीपल जीन जैसा ये पॉलीजेनिक, बरोबर समझना। पॉलीजेनिक, व्हाट इज अ पॉलीजेनिक? फिर से वही लिखता हूं, मोर देन वन पेयर ऑफ जीन फॉर वन कैरेक्टर, all pairs are present. क्या आया? more than one pair of genes। सर बोलते सर यहाँ भी तो more than one pair है, यहाँ भी more than one pair है। यहाँ देखो मेंडल और मॉर्गन से हम स्टडी करेंगे तो बोलो वहाँ भी वो उनका स्टडी क्या था? एवरी कैरेक्टर के लिए एक ही पेयर। बट मेंडल के स्टडी में उनको क्या रिजल्ट मिला? जो भी रिजल्ट मिला वो किसके लिए एप्लीकेबल है कि जब 2 पेयर को हम स्टडी करें तो एक पेयर एक क्रोमोसोम पे है और दूसरे कैरेक्टर की दूसरे क्रोमोसोम पेयर पे है। जब मॉर्गन ने किया तो उनको मेंडल जैसा 9-3-3-1 रिजल्ट नहीं मिला। व्हाट डज इट मीन? इट मींस दैट उनके अंदर भी उन्होंने 2 कैरेक्टर को स्टडी करा, विच 2 पेयर्स, बट बोथ पेयर्स आर प्रेजेंट ऑन सेम पेयर ऑफ द क्रोमोसोम। हाँ, फिर उसमें डिस्टेंस कितना है उसके हिसाब से वो थोड़ा बहुत रिजल्ट वेरिएशन होता है, वो हम चैप्टर के एंड में जब एक्स्ट्रा टॉपिक लेंगे उसमें समझेंगे। स्टिल वी हैव टू वेट फॉर दैट 5 to 6 लेक्चर्स, क्योंकि ये सब समझना बहुत जरूरी है। स्टूडेंट हो गया करते ऐसा मेरे को पसंद नहीं है। चलो देखो उसके बाद में मल्टीपल जीन्स एंड पॉलीजेनिक हेरिडिटी, बोलो उसमें क्या है? दोनों में मोर देन वन पेयर। तो पॉलीजेनिक हमने मल्टीपल जीन हमने क्या था? बोलो क्या? मोर देन वन पेयर ऑफ जीन्स। एग्जांपल ब्लड ग्रुप, यानी एक ही कैरेक्टर कौन सा ब्लड ग्रुप के लिए, बट कोई भी इंडिविजुअल में से वो 6 पेयर में से कितनी पॉसिबल है? ओनली 1। सब 6 से 6 एक साथ में नहीं होती। बट जब हम पॉलीजेनिक
एलईडीडी को समझते हो क्या? वही मोर देन वन पेयर फॉर वन कैरेक्टर बट ऑल पेयर्स आर प्रेजेंट। क्या है इसका एग्जांपल? इसका एग्जांपल है हमारा स्किन कलर। बोलो स्किन कलर में क्या आएगा? तो बोलो देयर आर द थ्री पेयर्स ए एन, डोमिनेंस है रिसेसिव। तो बोलो एक पेयर होमोजाइगस डोमिनेंस हो सकती है या होमोजाइगस रिसेसिव हो सकती है, हेटेरोजाइगस भी हो सकती है। दूसरी पेयर को हम बी बोलेंगे। बोलो तुम्हारे को स्टडी करने के लिए उन्होंने ए और बी एंड सी करके दिया आएगा। एक्चुअल में वो जीन्स को कुछ और बोलते हैं, उसका सिंबल भी कुछ और है। बट एट दिस लेवल इफ यू कैन अंडरस्टैंड हाउ मेनी possibilities are there, homozygous heterozygous से कंबाइन कंसीडर करें तो कितनी? 3 पेयर है। ये कोई एक क्रोमोसोम पेयर पे हो गया, ये जीन्स दूसरे कोई क्रोमोसोम पेयर पे होगा, ये कोई और कोई थर्ड पे होगा। बट बोलो वो सब प्रेजेंस है। एज फॉर एग्जांपल ऐसा कोई के अंदर है, बोलो ये फर्स्ट पेयर ऐसी है, सेकंड पेयर सेकंड क्रोमोसोम पे उसकी जीन ऐसी है, थर्ड पे ऑफ द क्रोमोसोम पे ऐसा है, तो उसका स्किन कलर टोटली डार्क ब्लैक होगा। दोस्त हम वेस्ट इंडीज ने वो साउथ वो अफ्रीकन कंट्रीज के एकदम ब्लैक बोलते हैं, बोलो होगा। अब बोलो कंसीडर ऐसा नहीं करो, बोलो ये ऐसा रहेगा मीन्स उसके अंदर भी बोलो एक पर्सन में ये पेयर भी प्रेजेंस है, ये पेयर भी प्रेजेंस है और ये पेयर भी प्रेजेंस है, तो उसका टोटली कलर इतना फेयर होगा कि हमको ऐसा लगेगा ऐसा व्हाइट कलर है स्किन का। वो जो भी होते वो लोग समझ में आया? मीन्स कितनी पेयर पॉसिबल से? 3 पेयर्स आर पॉसिबल से, ऑल आर प्रेजेंस। ब्लड ग्रुप में क्या था? those 3 pairs, एक्चुअल में तो 3 है, IA, IB एंड स्मॉल i की। तो बोलो और उसमें से कितनी पेयर प्रेजेंट होती है? ओनली 1। यहाँ पे क्या है? 3 पेयर से ना ऑल आर द प्रेजेंस। बोलो ये टोटली डार्क ब्लैक कलर है, ये एकदम फेयर कलर, कितना फेयर कलर के हम समझ भी नहीं पाएंगे। इंडियंस में बोलो सब ऐसा रहता है, एवरेज इंडियन, इसमें भी वेरिएशन आ सकता है। हेटेरोजाइगस है, हेटेरोजाइगस बी, हेटेरोजाइगस सी मींस आवर व्हीट इज व्हीट जैसा टोटली डार्क भी नहीं, टोटली फेयर हो। समझ में आ रहेगा? बोलो कितने स्टूडेंट कितने आते सर कोई में ऐसा हो सकता है? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? कोई पेयर जो ये फर्स्ट है तो बोलो ये इस पर एग्जांपल फर्स्ट पेयर पे उसके पास होमोजाइगस है, एक बंदे के पास में होमोजाइगस है, इसके पास भी होमोजाइगस ए है। बोलो पहले बंदे के पास में सेकंड क्रोमोसोम पेयर पे होमोजाइगस बी है, लेकिन इसके पास होमोजाइगस रिसेसिव भी है। इसके पास होमोजाइगस डोमिनेंट सी है, तो इसके पास थर्ड पेयर बोलो कैसी है? होमोजाइगस रिसेसिव सी। ऐसा भी हो सकता है। कितनी पॉसिबिलिटीज है? ऐसा भी हो सकता है। ये हेटेरोजाइगस के बीच में होमोजाइगस रिसेसिव, ऐसा भी हो सकता है। कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। एनीथिंग इज पॉसिबल, बट सब में होगी तो कितनी? 3 पेयर सब। इस कैरेक्टर कितना हुआ? एक। स्किन कलर एक कैरेक्टर में कितने पेयर प्रेजेंस है? ए वाली भी, बी वाली भी, सी वाली। ब्लड ग्रुप में क्या हुआ था? कैरेक्टर है कौन सा? दैट इज ओनली ब्लड ग्रुप। बट प्रेजेंस कौन सी है? ओनली 1। आइदर IA IA स्मॉल आई और IB स्मॉल बी, IB स्मॉल आई, IA IB स्मॉल आई स्मॉल। उसमें से कोई भी एक पेयर प्रेजेंट है। मल्टीपल पॉलीजेनिक में क्या आएगा? जो 3 पेयर है वो सब 3 पेयर प्रेजेंस होती है। और समझ में आता है? अब देखो यहाँ से इतना हुआ, ये सब हमने यहाँ पे हमने समझा। भी एक और यहाँ से चाहिए। लोग दिस इज द आवर लिमिटेशन दैट वी कैन नॉट डू, इतना सब वो उससे कर सकते हैं। तो मैं इसको और थोड़े अलग इससे थोड़ा रिप्रेजेंट करता हूँ। फिर जब होगा मैं बोलूँगा तो तुमको वो वीडियोस पोस्ट करके पूरा ऐसा चार्ट तुम्हारे समझने के लिए लिखने का, तो फिर समझ में आएगा। बोलो यहाँ पे क्या? I should write that more than
one pair of genes. बोलो more than one pair of genes. I should say that. But presence in individual in human being only one pair. प्रेजेंस कितनी है? ओनली वन पेयर. वो हम सीख गए, वो ब्लड ग्रुप. मल्टीपल एलियंस. बोलो यहां से अभी हमने देखा, बोलो वो क्या आएगा? मोर देन वन पेयर ऑफ जीन्स. बट व्हाट? प्रेजेंट ऑल पेयर्स इन वेरियस कॉम्बिनेशन. उसको ने क्या बोलेंगे? पॉलीजेनिक. समझ में आया? अब देखो थर्ड, प्लियोट्रोपी. क्या है प्लियोट्रोपी? वन पेयर ऑफ जीन. स्टूडेंट बोलते हैं सर वन पेयर ऑफ जीन्स. तो ये तो मेंडल ने वो आ गया, उसके साथ में तो अभी हम कंपेयर करेंगे. वन पेयर ऑफ जीन्स बट इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर देन वन कैरेक्टर. एक कैरेक्टर है उसके ऊपर भी वो इन्फ्लुएंस करता है, दूसरे कैरेक्टर को भी वही कंट्रोल करता है, और थर्ड कैरेक्टर को भी वही कंट्रोल करता है. इसको बोलेंगे प्लियोट्रोपी. मेंडल के उसमें क्या है? एक जीन पेयर है, वो एक कैरेक्टर को ही कंट्रोल करेगा. मॉर्गन में भी वो एक पेयर है, वो एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा. तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम पहले ले गए कि मेंडल में एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, बट देयर इफ व्हेन वी कंसीडर मोर देन वन कैरेक्टर, तो मोर देन वन पेयर ऑफ द जीन्स, बट दे आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट पेयर ऑफ द क्रोमोसोम. मॉर्गन में जब हम एक से ज्यादा पेयर कैरेक्टर और जीन्स एलियंस को कंपेयर करते हैं तो क्या है? दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम. यहाँ पे क्या है? वही एक पेयर जीन, वन पेयर, एक कैरेक्टर, सेकंड कैरेक्टर, थर्ड कैरेक्टर, बहुत सारे को कंपेयर वो अपने कंट्रोल करता है. ऐसा एक एग्जांपल है, एक आगे आ गया यही चैप्टर में. अगर जो तुमने ध्यान दिया हो या तो तुम रीड करके फाइंड करना, नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा वो क्या है. चलो उसके पहले बोलो ये मेंडल और ये जो हम अभी प्लियोट्रोपी समझेंगे वो समझ में आ गया? क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे प्लियोट्रोपी. जब बोलो यहाँ पे हमने जो ब्लड ग्रुप समझा था उसमें क्या? मोर देन वन पेयर ऑफ जीन्स बट प्रेजेंट इन ओनली दैट वन इंडिविजुअल ओनली वन पेयर. जितनी भी ज्यादा है बट प्रेजेंट एक ही होती, ब्लड ग्रुप मल्टीपल एलियंस. पॉलीजेनिक में क्या है? वही मोर देन वन पेयर ऑफ जीन्स बट प्रेजेंट ऑल द पेयर स्किन कलर. ये चार्ट तुमको अच्छे से आना चाहिए, ये बरोबर मगज में फिट होना चाहिए. और बोलो ये हम समझेंगे, आपका जो है वो टॉपिक समझेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एंड प्लियोट्रोपी ऑन द पेज नंबर 85, टॉपिक नंबर 5.4. ये है पेज 85, टॉपिक नंबर 5.4. और ये जो है प्लियोट्रोपी वो भी पेज 85 पे टॉपिक नंबर क्या आएगा? तो 5.5. बोलो क्या है? 5.4 पेज नंबर 85 पे देखो पहले. पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. Mendel studies mainly describe those traits have the distinct alternate forms such as a flower color, which are either purple or white. दो ही possible थी, purple or white. But if you look around, you will find that there are many traits which are not so distinct in their occurrence and are spread across the gradient. यानी पूरे एरिया में इतना सब नहीं है. अभी एक एग्जांपल समझ में आएगा. फॉर एग्जांपल इन ह्यूमन बीइंग वी डोंट जस्ट हैव टॉल एंड शॉर्ट पीपल. टॉल और शॉर्ट ही नहीं है, डार्क और फेयर ही नहीं है. मैं थोड़ा ज्यादा डार्क हूँ तो तुम थोड़े ज्यादा फेयर हो, तुम्हारे से ज्यादा और कोई ज्यादा फेयर है, मेरे से और है ज्यादा कोई डार्क है, उससे भी ज्यादा और कोई डार्क है. जब बोलो प्लांट मेंडल ने स्टडी करा उसमें फ्लावर कलर खाली दो ही है, पर्पल एंड व्हाइट. मिक्सिंग कुछ भी नहीं है. समझ में आता है? जो ऐसे जो मिक्स होके जो कुछ बनता था वो भी हमने स्टडी करा था. बोलो वो जो स्टडी करा था इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमने करा था. वो डोमिनेंस में एक साथ में आता है, एक एक पॉइंट समझ में आना चाहिए. इनकम्प्लीट में दोनों मिक्स हो जाके दोनों का मिक्स अपीयरेंस आता है. वो डोमिनेंस में क्या होता है? दोनों के एक साथ में आता है, आई ए आई बी, ब्लड ग्रुप ए एंड बी.
वो एक अलग टॉपिक हो गया, बट यहाँ पे हम पेयर ऑफ जीन्स से कंसीडर कर रहे हैं। तो बोलो यहाँ वी डू नॉट जस्ट हैव टॉल एंड शॉर्ट पीपल एज टू डिस्टिंक्ट ऑल्टरनेटिव्स बट होल रेंज ऑफ द पॉसिबल हाइट्स। है ना, पॉसिबल हाइट कोई 4 फीट है, कोई 4.1 फीट है, कोई 4.2 फीट है, कोई 5 फीट है, कोई 5.3 फीट है, कोई 5.6 फीट है, कोई 6 फीट है, कोई 5.9 फीट है, कोई 6.2 फीट है। इस वेरिएशन ऐसा नहीं कि एक हाइट 6 फीट है और ह्यूमन बीइंग में 6 वाला एक 5 वाला हो गया, ऐसा नहीं है। तो इतना सब वेरिएशन कैसे आता है? पॉलीजेनिक। क्यों पॉलीजेनिक? अभी हमने समझे थे 3 पेयर है, तीनों तीन होमोजाइगस डोमिनेंट हो सकते, तो तीन होमोजाइगस रिसेसिव हो सकते, कोई एक हेटेरोजाइगस बाकी के दो ऐसे, भाई एक ऐसा दो हो एक ये 3 हो, ऐसा सब कुछ भी हो सकता है। Such traits are generally alternatives but a whole range of possible heights. Such traits are generally controlled by 3 or more genes and thus called polygenic traits. क्या बोलेंगे उसको? Polygenic traits. Besides the involvement of the multiple genes, polygenic inheritance also takes into account the influence of environment. हाँ, यहाँ पे एक बोलो एक चीज और है, एनवायरमेंट भी इफेक्ट करता है उसका। हम क्योंकि हमारे बुक में स्किन कलर लिया है तो एनवायरमेंट भी उसके ऊपर थोड़ा इन्फ्लुएंस करता है। बट उसका बेसिक तो क्या है, में प्लियोट्रोपी में क्या लिखा है, ये यहाँ पे आएगा, इस पे एनवायरमेंट भी इफेक्ट करता है। स्किन कलर, बट बेसिक तो क्या है, फॉर दैट वन स्किन कलर देयर इज मोर देन वन पेयर ऑफ द जीन्स एंड ऑल आर प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल। हाँ, अलग अलग में उसके अलग अलग कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। ह्यूमन स्किन कलर इज द अनदर क्लासिकल एग्जांपल फॉर दिस। In a polygenic trait, the phenotype reflects the classic contribution of such allele. That is, the effect of each allele is additive. यानी जैसा वो अपने each allele का पेयर जैसा बना वैसा उसकी इफेक्ट आएगी। To understand these better, let us assume that the 3 genes, assume सभी करा है 3 genes A B C। जब तुम आगे जाके उसको स्टडी करोगे तो वो जीन के नेम भी आएंगे, उसको कौन से क्रोमोसोम पे है क्या है वो सब डिटेल में आएगा। अभी तो तुमको 3 जीन्स समझ में आ गए कि वो एक ही कैरेक्टर पे इन्फ्लुएंस करता है। What are those genes? A B and C control skin color in human with the dominant forms A और B and C। रिस्पॉन्सिबल फॉर डार्क स्किन कलर, बोलो डार्क स्किन कलर जिसका बनता है बोलो उसके अंदर बोलो क्या है, होमोजाइगस ए, होमोजाइगस बी एंड होमोजाइगस सी। ये डार्क स्किन कलर है, डार्क स्किन। जब उसके कंपेयर में एकदम फेक जो रहती है वो कैसी रहती है, टोटली व्हाइट कलर। होमोजाइगस रिसेसिव ए, होमोजाइगस रिसेसिव बी, होमोजाइगस रिसेसिव सी। Responsible for the dark skin color and recessive forms ABC for the light skin color. The genotype with the all dominant alleles means homozygous A, homozygous B, homozygous C, all 3 are dominant. Will have the darkest skin color and that with the recessive alleles. Homozygous recessive A, recessive B and recessive C will have the lightest skin color. Totally white, इतना white होता है कि हमको तो अच्छा भी लगेगा। As expected, the genotype with the 3 dominant alleles and 3 recessive alleles will have the intermediate skin color. बोलो इसके बीच में की जो भी कॉम्बिनेशन बनेगी, अभी एक ही कॉम्बिनेशन हम समझते हैं, हेटेरोजाइगस A, हेटेरोजाइगस B, हेटेरोजाइगस C, तो इंटरमीडिएट। बट और भी सब पॉसिबिलिटीज है, वो अभी यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे रब करके। As expected, the genotype with the 3 dominant alleles and the 3 recessive alleles will have an intermediate skin color. In this manner, the number of the each alleles in the genotype would determine the darkness or the lightness of the skin of individual. और समझ में आया इतना? ये टॉपिक ये हमने पहले स्टडी करा था, ब्लड ग्रुप भी हमने स्टडी कर लिया था। चलो ये जो अभी आज हमने ये स्टडी करा, ये अब बोलो यहाँ से हम प्लियोट्रोपी स्टडी करेंगे। यानी क्या वो अलग ही वन पेयर ही है बट वो अलग अलग 3 कैरेक्टर तो हमारी बुक में दिए उसके लिए, बट क्या आएगा वो अलग अलग कितने कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, मोर देन 3, 5, 6 इतने कैरेक्टर होते हैं उससे। प्लियोट्रोपी
We have so far seen that the effect of the gene on a single phenotype, एक जीन का एक ही single phenotype trait पे effect है. There are, however, instances where the single gene can exhibit multiple phenotype expression. एक ही जीन multiple अलग-अलग कितने पे effect करेगा. Such genes is called pleiotropic gene. वो जीन को क्या बोलेंगे? Pleiotropic gene. The underlying mechanism of the pleiotropy in most cases the effect of the genes on metabolic pathway. Highlight करो बुक में metabolic pathway. ये जो स्टडी रहता है वो क्या होता है? मेटाबॉलिक पाथवे पे इफेक्ट करता है. स्टडी मींस इसकी प्रेजेंस और एब्सेंस. मेटाबॉलिक पाथवे. अभी हम समझते हैं मेटाबॉलिक पाथवे यानी क्या? हमारे बॉडी में जो रिएक्शन होता है तो बोलो एक जो कुछ रिएक्टेंट है वो रिएक्टेंट पे बोलो उसकी एंजाइम की इफेक्ट हुई. एंजाइम नंबर 1 तो उसका एक प्रोडक्ट मिला. वो अपने प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट है उसके पे एंजाइम नंबर 2 इफेक्ट करेगा तो दूसरा आपने मिला. तो ए रिएक्टेंट बी में कन्वर्ट हुआ, बी सी में कन्वर्ट हुआ, सी पे और एंजाइम इफेक्ट करेगा तो वो डी में कन्वर्ट होगा. ऐसे हमको एट लास्ट ए में से डी मिलेगा. हम तो जनरली ए में से डी को कंसीडर करते हैं. दिस टाइप ऑफ द रिएक्शन हमने 11th स्टैंडर्ड में एंजाइम वाले चैप्टर में स्टडी करा. अब देखो हम अपने यहाँ पे इसको सबके करते हैं. बट बोलो ये कंबाइनली बोलो ए की एंजाइम हमारी बुक में दे दिया आएगा. अभी एंजाइम का नेम कुछ भी नहीं है, समझना आएगा. बोलो ये जो एंजाइम है बोलो वो एंजाइम ए की हैगा और वो एंजाइम सिंगल एंजाइम को प्रोड्यूस करने के लिए बोलो एक ही जीन है. मींस वन जीन है प्रोड्यूस वन एंजाइम एंड दैट इज द इफेक्ट जो ए में से बी को भी कन्वर्ट करता है, बी में से सी, सी में से डी. तो हमको ये मेटाबॉलिक पाथवे में से फाइनल प्रोडक्ट मिलती है. The underlying mechanism of the pleiotropy in most cases is the effect of the gene on a metabolic pathways which contribute towards the different phenotypes. An example of this is the disease phenylketonuria, which occur in humans. The disease is caused by mutation in the gene that codes for the enzyme phenylalanine hydroxylase. आप और मेरे अंदर क्या आएगा बरोबर समझना. तुम्हारे अंदर मेरे अंदर ऑल वी है व्हाट. यहीं पे हम समझते हैं प्लियोट्रोपी में हमारे में जो जीन है वो जीन वन पेयर, ओनली वन पेयर, एंड दिस पेयर इज वी हैव नॉर्मल जीन्स. नॉर्मल है, कोई डिफेक्ट नहीं है. तो ये जीन की इफेक्ट आने से हमारे अंदर एक एंजाइम प्रोड्यूस होता है. कौन सा एंजाइम? फिनाइलएलेनिन हाइड्रोक्साइलेज. और ये फिनाइलएलेनिन हाइड्रोक्साइलेज बनने से हमारे अंदर क्या होता है? नॉर्मल पाथवे होता है और वी आर द नॉर्मल. बट अब समझो जिसके अंदर ये जीन में कुछ डिफेक्ट आ गई, जीन खराब हो गया, डिफेक्ट हो गया, उसको म्यूटेंट कहेंगे, म्यूटेशन हो गया. तो बोलो म्यूटेंट जीन हो गया. ये म्यूटेंट जीन हुआ तो एंजाइम भी उसके इफेक्ट से खराब हो गया, वो नॉट फंक्शनिंग बन गया. तो उससे उसका पाथवे नॉर्मल नहीं होता, एबनॉर्मल हो जाता है. कौन सा एंजाइम है? फिनाइलएलेनिन हाइड्रोक्साइलेज. वो म्यूटेंट हुआ तो उससे जो पाथवे खराब होने से जो डिजीज हुई उसको बोलेंगे फिनाइलकीटोन्यूरिया. क्या बोलेंगे? फिनाइलकीटोन्यूरिया. मींस लो वन जीन, वो जीन ने एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है उससे हम नॉर्मल बनते हैं. बट वो जीन वो ही रिसेसिव हो गया, रिसेसिव यानी म्यूटेंट होके खराब हो गया. डोमिनेंट है तो नॉर्मल, रिसेसिव हुआ तो खराब हो गया. तो उससे जो एंजाइम बना वो भी खराब हो गया. तो जो डिजीज हुआ उसको बोलेंगे फिनाइलकीटोन्यूरिया. अब स्टूडेंट बोलते हैं सर फिनाइलकीटोन्यूरिया तो एक ही तो डिजीज है. अभी देखते हैं, अभी आंसर मिल जाएगा. Which occurs in human, the disease caused by mutation in the genes that codes for the enzyme phenylalanine hydroxylase. Single gene mutation बोलेंगे. This manifests itself through the phenotypic expression characterized by mental retardation. बोलो एक उसकी इफेक्ट क्या आई? mental retardation. दूसरी इफेक्ट एंड रिडक्शन इन हेयर एंड स्किन पिगमेंटेशन.
हेयर पिगमेंटेशन, हेयर उसके बाय बर्थ ही व्हाइट रहेंगे और स्किन कलर भी उसकी बाय बर्थ व्हाइट रहेगी। तो बोलो कितना जीन आया? वन पेयर। वन पेयर हैज द थ्री इफेक्ट। We have the that normal pair. Normal pair means normal enzyme. तो हमारा मेंटल फंक्शन भी बरोबर है, फंक्शन भी अलग है, हमारा हेयर कलर भी बरोबर है और स्किन कलर भी बरोबर है, बट वही जीन म्यूटेंट हो गया तो फिनाइलकीटोनुरिया में मेंटल रिटार्डेशन भी हो गया, हेयर एंड स्किन कलर में भी फॉल्ट आ गया। मींस वी कैन से दैट बाय दिस म्यूटेंट स्टडी कि नॉर्मल वन जीन से ही थ्री कैरेक्टर मेंटेन होते हैं। मींस वन पेयर ऑफ जीन्स मोर देन वन कैरेक्टर। हमारे बुक में थ्री कैरेक्टर दिए, उसके लिए थ्री कैरेक्टर मैंने लिखाएगा। तो बोलो यहाँ पे नॉर्मल में हमने स्टडी करा था वन पेयर ऑफ जीन्स वन कैरेक्टर, वो मेंडल एंड मॉर्गन का था, बट अब यहाँ पे हमने जो स्टडी करा वो मोर देन वन है, तो उसको बोलेंगे प्लियोट्रोपिक। समझ में आता है इतना? तो देखो ये कोर्स करके ये पूरा ये लिख लेने का, स्टडी को ट्राई करने का, और उसको 3-4 बार स्टडी करो। जितना 3-4 बार स्टडी करोगे तो तुम्हारा क्लियर होगा। तो यही चीज अब हम एक दूसरे हेरिडिटी के टॉपिक में एक दूसरा टॉपिक लेते हैं, उसको बोलेंगे सेल्फ डिटर्मिनेशन। मीन्स कोई भी किसी में भी जो कुछ भी प्रोजेनी आती है, वो प्रोजेनी मेल रहेगी के फीमेल, वो भी हेरिडिटी है। द मैकेनिज्म ऑफ द सेक्स डिटर्मिनेशन, पेज नंबर 85 पे टॉपिक नंबर 5.6 has the mechanism of the sex determination has always been puzzled before the geneticians. The initial clue about the genetic chromosome mechanism of the sex determination can be traced back to some of the experiments carried out in insects. बोलो ये जो sex determination का क्रोमोसोम और जीन का जो स्टडी हुआ था वो ह्यूमन बीइंग और उस पे नहीं हुआ था, बोलो किस पे हुआ था? इंसेक्ट्स पे हुआ था। बरोबर समझना। Carried out in insect. In fact, the cytological observation made by the number of insects led to the development of the concept the genetic chromosome basis on sex determination. साइटोलॉजिकल स्टडी करा था। साइटोलॉजिकल जेनेटिक्स में मींस सेल स्ट्रक्चर, सेल के अंदर कैसा क्रोमोसोम क्या है, वो साइटोलॉजी रिलेटेड द सेल, उसको बोलेंगे साइटोलॉजी। साइटोलॉजिकल स्टडी करा था, किसमें करा था? इंसेक्ट्स में। किसने करा था? देखो हैनकिंग, क्या नाम है? हैनकिंग। हैनकिंग, हैन पे से याद रख लेने का, इंसेक्ट नहीं बर्ड है हैन, बट हैनकिंग। कौन से ईयर में करा था? 1891। क्या उन्होंने करा था? देख लो। Who traced the specific nuclear structure means inside the nucleus all through the spermatogenesis in few insects, and it was also observed by him 50% of the sperm received the structure after spermatogenesis, where the other 50% sperm did not receive that particular structure. क्या वो स्टडी करा उन्होंने हैंकिंग में? स्पर्म फॉर्मेशन, spermatogenesis. When he studied what he find 50% of sperm. देखो मैंने समझने के लिए ये स्पर्म यहाँ पे ड्रॉ किया, तो बोलो वो स्पर्म में इसके न्यूक्लियस में एक एक्स्ट्रा कुछ दिखा, इसमें नहीं दिखा। There are two type of the sperm. Some is the some specific expression. In other 50% half that is absent. So he could not make out what is this. So he concluded that this is the something extra which is still it should be identified. तो बोलो तुमने जब लोअर स्टैंडर्ड यू हैव स्टडीड, let you don't know that the let the one number x, let the one point x y z, तो बोलो एक 4 बिलियन है तो दूसरा कोई लेते हैं, कोई नंबर के लिए कोई सम सोल्व करना है तो लेट नंबर x, ऐसा। तो बोलो अभी ये स्टडी नहीं करा था तो उन्होंने उसको दिया x। समझ में आया? तो उसमें x प्रेजेंट है और इसमें x एब्सेंट है।
received the structure after screening where the 50% sperm did not receive it. Hanking gave the name this structure as the X body. X means X पे से बोलो खुद तो बोलना पड़ेगा, कोई अल्फाबेट नहीं समझने उसके लिए उसको X body बोला. This particular type of the body structure X is present here, X is absent here. But he could not explain its significance. Further investigation by other scientists led to the conclusion that the X body of the Hanking was in fact a chromosome. उसके बाद में जब उन्होंने स्टडी करा तो पता चल गया कि हैंकिंग उसको X को आइडेंटिफाई कर सका कि समथिंग इज देयर, बट ही कुड नॉट आइडेंटिफाई इट एज अ क्रोमोसोम. तो बोलो ये X क्या हैगा? तो X को उन्होंने बोला वो एक टाइप का कुछ एक एक्स्ट्रा नहीं है, बट वो क्या है? एक क्रोमोसोम है. मींस इसमें से क्या हुआ? बोलो इसके अंदर X क्रोमोसोम प्रेजेंट है, इसमें X क्रोमोसोम नहीं है. बिफोर इट, चलो यहाँ से देख लेते फिर अपने देखते. Given the name X chromosome, it was also observed in a large number of the insects. The mechanism of the sex determination is of the X0 type. समझाता हूँ मैं. That is, all X bear an additional X chromosome beside the other chromosome autosomes. On the other hand, the sum of the sperm bear X chromosome where the sum do not. अब देखो क्या हुआ इसमें. जब उन्होंने फर्दर स्टडी करा तो देखो ये अब यही चीज में यहाँ पे थोड़े अलग से अपने बताऊं तो बोलो half of the sperm have the X, half of does not have the. तो बोलो स्पर्मेटोजेनेसिस मींस क्या? मियोसिस. तो अब इसमें बोलो क्या हुआ? जब उन्होंने फीमेल के अंदर एक फॉर्मेशन को स्टडी करा, एक टाइप को स्टडी करा, तो बोलो एग्स में क्या हुआ? उसमें ऑल द एग्स आर ऑफ द सेम टाइप, सब में एक्स था. ये एक्स को मैं ऐसे बताया ऐसे. अब बोलो इसमें क्या था? तो इसमें बिसाइड दिस X और यहाँ पे X नहीं है, यहाँ पे दूसरे भी क्रोमोसोम थे. वो क्रोमोसोम को बोलेंगे ऑटोसोम A. तो यहाँ भी ऑटोसोम A था. अब क्वेश्चन आता है सर ये ऑटोसोम क्या है? तो यहाँ भी ऑटोसोम A है और यहाँ भी ऑटोसोम A है. बोलो व्हाट हैपन? बोलो मेल इंसेक्ट रहेगा उसमें विंग्स तो रहेगी, फीमेल में भी विंग्स रहेगी. तो विंग्स के लिए जो है उसको बोलेंगे, वो क्रोमोसोम को बोलेंगे ऑटोसोम. बोलो मेल एग रहेगा उसमें भी क्या है? उसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, उसके रेस्पिरेशन के स्पाइरिकल्स है. तो बोलो वो सब मेल और फीमेल में कॉमन रहेगा. तो कॉमन जो बॉडी कैरेक्टर रहते हैं उसका जो क्रोमोसोम रहता है उसको बोलेंगे ऑटोसोम ए. तो हम यहाँ पे ऑटोसोम ए सब के अंदर आइदर इट इज स्पर्म और एग्स मेल और फीमेल प्रेजेंस है, तो उसको कंसीडर नहीं करते हैंगे. तो बोलो यहाँ भी नहीं करते, बट समझने के लिए यहाँ पे भी ए था, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे नहीं है. तो बोलो वी नो दैट एट द टाइम ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस मियोसिस टेक प्लेस. तो बोलो मियोसिस हुआ तो बोलो मेल में क्या कंसीडर कंडीशन थी? ए ऑटोसोम पेयर में था, बट एक्स के साथ में पेयर नहीं था. कि पेयर नहीं था तो बोलो जब यहाँ पे ऐसा हुआ और यहाँ से सेपरेशन हुआ, ये सेपरेशन हुआ तो बोलो ये स्पर्म क्या बना? A प्लस एक्स. यहाँ इसको ए तो मिला ऑटोसोम, बट एक्स नहीं मिला, तो ये अपने क्या बना? A प्लस 0. मीन्स मेल इंसेक्ट है, वो मेल इंसेक्ट का बोलो ये तो सब मेल का मेल फीमेल, उसके लिए मेल इंसेक्ट बोलो क्या हैगा? X0. अब फीमेल में भी अभी हम देख रहे से ये तो था ही, साथ में दोनों में X आया. तो जब oogenesis हुआ तो बोलो यहाँ पे भी क्या हुआ था? मियोसिस में पेयर थी, तो पेयर सेपरेट हुई, तो बोलो ऐसी सेपरेट हुई तो यहाँ पे A प्लस एक्स आया, इसको भी A प्लस एक्स आया. तो बोलो फीमेल इंसेक्ट्स में भी बोलो क्या था? A प्लस एक्स. अब ये A तो इसमें भी था ना उसमें भी था, तो हम इसको यहाँ पे भी A जाने देंगे. तो बोलो फीमेल के अंदर दोनों सेक्स क्रोमोसोम X है, मेल के अंदर बोलो दोनों सेक्स क्रोमोसोम में ओनली वन ही प्रेजेंट है, दूसरा एब्सेंट है. तो A को हम यहाँ बताते नहीं. अब देखो आगे स्टडी करने के लिए यही चीज अभी कंसेप्ट क्लियर हुआ है, तो जो कुछ हैंकिंग ने स्टडी करके आगे कंक्लूजन दिया. अभी हम देखते क्या हैगा? बोलो मेल इंसेक्ट
मेल इंसेक्ट इज X0। बोलो ये मेल इंसेक्ट X0 है, तो बोलो यहाँ से जो स्पर्म बना उसके गैमेट्स फॉर्म हुए। These gametes are what type? X क्रोमोसोम एंड 0 क्रोमोसोम। चलो फीमेल है, बोलो फीमेल के अंदर XX है, वो ऑटोसोम तो दोनों में है, वो सेम है, तो हम उसको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो बोलो यहाँ पे जो X बने वो XX वाले बने। तो बोलो ये स्पर्म है, मैं इसको स्पर्म को ऐसा ड्रॉ करूंगा, ये स्पर्म को ऐसा ड्रॉ करूंगा, एक को ऐसा ड्रॉ करूंगा, एक को ऐसा ड्रॉ करूंगा। अब ये एक फर्टिलाइज करेगा कि ये करेगा, कोई डिफरेंस नहीं बनता। तो बोलो यहाँ से दोनों X कॉमन एक साथ है, तो मैं एक को ही रिप्रेजेंट करूंगा। यहाँ पे ये जो स्पर्म है, दोनों स्पर्म अलग है, तो हम दोनों लिखूंगा। बोलो अब ये X क्रोमोसोम कहाँ से आया? एक में से, और स्पर्म आया X वाला, तो उसकी प्रोजेनी बनेगी XX, तो ये प्रोजेनी बनेगी फीमेल। बोलो यहाँ से एक तो X वाला ही आएगा, बोलो यहाँ पे स्पर्म 0 वाला आया, यानी स्पर्म का पेयरिंग नहीं हुआ X वाले में, तो बोलो ये जो प्रोजेनी बनेगी वो क्या बनेगा? मेल बनेगा। तो यहाँ पे मेल को बोलेंगे X0, फीमेल को बोलेंगे XX। ये हैंकिंग ने स्टडी किया था इंसेक्ट में। कहीं स्टूडेंट इसको फिर बोले ह्यूमन बीइंग में XY, वो XY भी अभी नेक्स्ट टॉपिक में आएगा, जो आज नहीं करेंगे, आज बहुत टाइम हो गया, नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। दैट इज ऑल X वेरिएंट। चलो वहां से अब पेज नंबर 86 पे सेकंड लाइन, it was also observed that in a large number of insects the mechanism of the sex determination is of X0 type, that is all X bear the additional X chromosome। all X में तो X आएगा ही, beside the other chromosome autosome तो है, उसके बदले हर एक में X तो है। On the other hand, some of the sperms bear X chromosome, whereas the some do not। बोलो ऑटोसोम के अलावा some स्पर्म में X है, some में नहीं है, उसको 0 बोलेंगे। Eggs fertilized by sperm having the X chromosome become female। बोलो X तो X वाला आया, बट स्पर्म कौन सा आया? X वाला, तो वो फीमेल बनेगा। And those fertilized by the sperm that do not have X chromosome became the male। बोलो यहाँ पे क्या हुआ? X वाला एक तो आया, बट यहाँ से जिसके पास X नहीं है वो अपने आया स्पर्म, तो बोलो कौन सा बना? X0 means what is it? It is a male। Do you think the number of the chromosome in the male and female are equal? नहीं। बोलो क्यों इक्वल नहीं है? जितनी भी पेयर होती है उसमें बोलो मेल में एक पेयर में एक कम रहता है, पूरी पेयर नहीं। From that last pair, जिसको सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, उसमें 1 रिड्यूस होता है, पूरी पेयर कम नहीं होती है। जब फीमेल में क्या आएगी? सभी पेयर कम। Due to the involvement of the X chromosome in the determination of the sex, it was designated to the sex chromosome। बोलो X को अपने क्या में बोला है उन्होंने? सेक्स क्रोमोसोम बोला है। It was designated to be the X sex chromosome, and the rest of the chromosome were named as autosome। उसको ने क्या बोलेंगे? ऑटोसोम, जो उसके बॉडी कैरेक्टर में उसके लिए लेता है। Grasshopper is an example of the X0 type sex determination in which the males have only one X chromosome beside the autosome, whereas the females have the pair of the X chromosome। This observation led to the investigation of the number of the aspects to understand the mechanism of the sex determination। किसमें? ह्यूमन बीइंग और दूसरे के अंदर। तो ये कैसे होता है ह्यूमन बीइंग और उसमें, वो हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। यहाँ तक समझ में आया? ओके, बेस्ट ऑफ लक।